ایشیا کپ میں پاکستان کے 128 رنز کے ہدف کے تعاقب میں بھارت کی بیٹنگ جاری، 2 وکٹوں کے نقصان پر 58 رنز بنا دیے۔ ایشیا کپ میں بھارت کے خلاف پاکستان کی بیٹنگ لائن ناکام، سائم ایوب، محمد حارث، سلمان علی آقا اور حسن نواز، کسی کا بلہ نہیں چلا۔ صاحبزادہ فرحان نے 40 رنز بنائے، شاہین شاہ افریدی نے شاندار بیٹنگ کی، 4 چھکوں کی مدد سے 31 رنز بنائے۔ سیلاب زدہ علاقوں میں گھریلو صارفین کے اگست کے بجلی کے بل معاف کر دیے گئے، وزیراعظم شہباز شریف نے اعلان کر دیا، کہا سیلاب متاثرین کے بل حکومت بھرے گی، جو لوگ بل ادا کر چکے ہیں انہیں رقم واپس کی جائے گی۔ وزیراعظم کا سیلاب زدہ علاقوں کی کمرشل صارفین کے بلوں کی وصولی مؤخر کرنے کا بھی اعلان۔ اسرائیلی جارحیت کے خلاف قطر سے اظہار یکجہتی کے لیے عرب اور اسلامی ممالک کا 2 روزہ اجلاس، دوحہ میں وزرائے خارجہ اجلاس سے قطر کے وزیر اعظم شیخ محمد بن عبد الرحمان کا خطاب، کہا اسرائیلی حکومت جان بوجھ کر جنگ کا دائرہ خطے کے دیگر ممالک تک پھیلا رہی ہے، اسرائیلی حملے کا سخت اور مؤثر جواب دیا جانا چاہیے۔ اور قطر میں وزیر خارجہ اسحاق ڈار کی ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی سے ملاقات، دونوں رہنماؤں نے قطر اور دیگر مسلم ممالک پر اسرائیلی حملوں کو ان ملکوں کی خود مختاری اور عالمی قوانین کی سنگین خلاف ورزی قرار دیا۔ اسحاق ڈار مصری ہم منصب بدر عبداللطیف اور ملائیشیا کے وزیر خارجہ محمد حسن سے بھی ملے، رہنماؤں نے عرب اسلامی سربراہی اجلاس کو بروقت اور اجتماعی اقدام کے لیے ناگزیر قرار دیا۔ کہا تھا کہ امیڈیٹ آپ اپیل کریں یونائیٹڈ نیشنز کو، باقی ممالک کو کہ وہ اپنا کردار ادا کریں۔ میں ایک بار پھر چیئرمین صاحب کی بات دہراتے ہوئے کہوں گا وفاق کی حکومت سے کہ اس پہ عمل درآمد کریں۔ perhaps it is already very late۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ وقت گزر گیا، اس لیے کہ اس وقت بھی ریلیف اور ریسکیو جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کے سکھر اور گڈو بیراج کے دورے، دریائے سندھ میں پانی کے بہاؤ کا جائزہ لیا، سیلابی صورتحال، ریلیف، میڈیکل اور لائف سٹاک کیمپوں کا معائنہ کیا، پنجاب سے آنے والے سیلابی ریلوں کے بارے میں بریفنگ لی، کمزور اور حساس مقامات پر نگرانی کی ہدایت کی، کہا موسمیاتی تبدیلی کی وجہ سے ہر چند برس کے بعد ہمیں سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ وزیر اعظم سے کہتے ہیں کہ ریلیف کے لیے ہنگامی بنیادوں پر اقوام متحدہ سے اپیل کی جائے، ہر سال دریا کے بہاؤ میں تبدیلی آتی ہے، پانی آتا ہے تو نقصان ہوتا ہے، حکومت سندھ کی پہلی ترجیح لوگوں کی جان بچانا ہے، اپنی تیاریوں سے مطمئن ہے۔ شمور ضلع میں تقریباً 30,000 لوگوں کو محفوظ مقام پر منتقل کیا، لوگوں کے انخلاء میں کوئی مشکل نہیں ہوئی، تعاون پر سندھ کے لوگوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ سیلاب کے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے سروے کیے جا رہے ہیں، سیلاب متاثرین کی جلد بحالی یقینی بنائیں گے، اس وقت اہم چیز لوگوں کی امداد ہے۔ وزیر خزانہ کی کمالیہ میں میڈیا سے گفتگو، محمد اورنگزیب نے کہا کہ موسمیاتی اور زرعی ایمرجنسی ڈکلیئر کی جا چکی ہے، ایمرجنسی کے تحت جو کرنا پڑا کریں گے، صوبوں کی مشاورت سے آگے بڑھیں گے، مصنوعی مہنگائی روکنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں، عالمی سطح پر فیول کی قیمت میں کمی آ رہی ہے تو عالمی مہنگائی کا مسئلہ نہیں۔ پاکستان میں سیلاب سے ہونے والے نقصانات کا تخمینہ لگانے کے لیے مردم شماری اور زراعت شماری کا ڈیٹا استعمال کرنے کا فیصلہ، انفراسٹرکچر اور کاروبار کی تباہی کا پتہ لگانے کے لیے اکنامک شماری سے بھی مدد لی جائے گی۔ ذرائع کے مطابق زراعت شماری سے حاصل ڈیٹا سے فصلوں اور لائف سٹاک کے نقصانات کا تجزیہ کیا جائے گا، دستیاب ڈیٹا اور سافٹ ویئر کے استعمال سے سیلابی نقصانات کا سروے کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر ترقی اور منصوبہ بندی احسن اقبال نے ادارہ شماریات کو ہدایات جاری کر دی، IMF کا پاکستان میں سیلاب سے اموات پر اظہار افسوس، کہا پاکستان میں مانسون بارشوں سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ صدر آصف علی زرداری کا چین کے ایئر کرافٹ کمپلیکس کا دورہ، مسلح افواج کے سپریم کمانڈر کی حیثیت سے کمپلیکس پہنچے، سائنسدانوں اور انجینئر سے ملاقات کی، کمپلیکس میں جاری آپریشنز پر بریفنگ دی گئی۔ ایئر کرافٹ کمپلیکس میں J-10C طیارے تیار کیے جاتے ہیں۔ صدر آصف علی زرداری نے کہا کہ J-10 اور JF-17 نے پاک فضائیہ کو مضبوط بنایا، مارکہ حق اور آپریشن بنیاد المرصوص میں ان طیاروں کی کارکردگی شاندار رہی۔ بلاول بھٹو زرداری، آصفہ بھٹو زرداری اور سینیٹر سلیم مانڈوی والا بھی صدر کے ہمراہ تھے۔ صدر آصف علی زرداری نے زلزلہ وارننگ سسٹم سے لیس ہائی سپیڈ
इलेक्ट्रिक ट्रेन में भी सफर किया। कहा, आलूदगी से पाक इलेक्ट्रिक ट्रेन और जलजला वार्निंग सिस्टम इंजीनियरिंग का शाहकार है। दौरे के अगले हिस्से में सदर जरदारी शंघाई पहुंच गए। इसराइली जारहियत के खिलाफ कतर से इज़हार यकजहती के लिए अरब और इस्लामी ममालिक का 2 रोज़ा इजलास। दोहा में वज़राए ख़ारिजा इजलास से कतर के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान का खिताब। कहा, इसराइली हुकूमत जानबूझकर जंग का दायरा खित्ते के दीगर ममालिक तक फैला रही है। इसराइली हमले का सख्त और मौसर जवाब दिया जाना चाहिए। आलमी बिरादरी दोहरा मयार छोड़े और इसराइल को उसके तमाम जराइम पर जवाबदेह ठहराए। इजलास में नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार समेत सऊदी अरब, तुर्क, यमन और दीगर इस्लामी ममालिक के वज़राए ख़ारिजा शरीक हुए। कल होने वाले सरबराही इजलास में अरब लीग और इस्लामी ताउन तंजीम के तहत इसराइल के खिलाफ मुश्तरका करारदाद मंजूर की जाएगी। सरबराह इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ भी शरीक होंगे। अरब इस्लामी सरबराह इजलास में शिरकत के लिए कतर में मौजूद वज़ीर ख़ारिजा इसहाक डार की ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने कतर और दीगर मुस्लिम ममालिक पर इसराइली हमलों को इन मुल्कों की खुदमुख्तारी और आलमी क़वानीन की संगीन खिलाफ वर्जी करार दिया। पाकिस्तान और ईरान ने मुस्लिम उम्मा के इत्तेहाद में अरब लीग और OIC के किरदार को कलीदी करार दिया। दोनों रहनुमाओं का फ़लस्तीनी अवाम की आज़ादी और हक़ खुद इरादियत की जद्दोजहद की भरपूर हिमायत का इरादा। इसहाक डार मिस्री हम मनसब बदर अब्दुल लतीफ़ और मलेशिया के वज़ीर ख़ारिजा मोहम्मद हसन से भी मिले। रहनुमाओं ने अरब इस्लामी सरबराही इजलास को बरवक्त और इज्तिमाई इक़दाम के लिए नागुज़ीर करार दिया। कतर में हालिया वाक़यात पर सदर ट्रंप नाखुश हैं। मुज़ाकरात मुतासिर हो सकते हैं, ताहम इसराइल से ताल्लुकात बहुत मजबूत हैं और रहेंगे। फ़लस्तीनी रियासत को तस्लीम करने वाले ममालिक को रद्द-ए-अमल से खबरदार किया था। इसराइल का रद्द-ए-अमल इन्हीं फैसलों का नतीजा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा की गुफ्तगू। मार्को रूबियो इसराइल पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि कतर में होने वाली मीटिंग में शरीक नहीं हो रहे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की शहीद कैप्टन तैमूर हसन के घर आमद। शहीद कैप्टन के वालिद ब्रिगेडियर हसन अब्बास और सोगवार खानदान से हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार किया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि जवान और इकलौते बेटे की जुदाई का दुख अल्फाज में बयान नहीं किया जा सकता। आपकी हिम्मत और हौसले को सलाम पेश करते हैं। डेरा गाजी खान की नदी सरोवर से 500 कदीमी सिक्के बरामद। डिप्टी कमिश्नर के मुताबिक सिक्के सदियों पुराने हैं। लोधी, तगलुक, दुरानी सिख और बरतानवी राज के दौर के सिक्के शामिल हैं। मकामी लोगों ने सिक्के महकमे आसार कदीमा के हवाले कर दिए। अमरीकी महकमे खारिजा ने पाकिस्तान में सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सामान भिजवा दिया। खुराक, खैमे और अद्वियात शामिल। अमरीकी सिफारतखाने का कहना है कि अमरीका पाकिस्तान के सैलाब मुतासरीन के साथ खड़ा है। पाकिस्तान में अमरीकी नाज़िमुल उमूर नेटली बेकर का कहना है कि अमरीका सैलाब में जानी नुकसान और घरों की तबाही पर गमज़दा है। हुकूमत पाकिस्तान की दरखास्त पर बैरूनी मुआवनत की मंजूरी दी। सैलाब मुतासरा इलाकों में कौमी इमदादी कार्रवाइयों के लिए हंगामी जरूरियात का सामान फराहम किया। तमन्ना में जिंदगी शम्मा की सूरत खुदाया में पाकिस्तान। सैलाब की आजमाइशों में भी मुस्कुराहटें बरकरार। आखिर बच्चे तो बच्चे हैं। मासूम बच्चों ने रिलीफ कैंप में भी जीने का ढंग सीख लिया। कैंपों में खेलते मुस्कुराते बच्चे, जिनके ख्वाब और मुस्तकबिल अब भी दांव पर है। पंजाब की सीनियर वजीर मरियम औरंगजेब का सैदपुर और अलीपुर के सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा। फ्लड रिलीफ कैंपों में सैलाब मुतासरीन से मुलाकात। सैलाब मुतासरीन को खाना, राशन, टेंट और दीगर इमदादी सामान की फराहमी का जायजा लिया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की जानिब से मुतासरीन का नुकसान पूरा करने की यकीन दहानी। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने कहा है कि सूबाई हुकूमत रेस्क्यू, रिलीफ और बहाली की सरगर्मियों में मसरूफ है। मजमूई तौर पर 1.5 लाख से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका है। कच्चे के इलाकों से 250 अफराद रिलीफ कैंपों में मुंतकिल किए गए। रिलीफ कैंपों में मजमूई तौर पर 450 अफराद मुकीम हैं।
कराची वाटर कॉर्पोरेशन ने हब केनाल के मुतासरा हिस्से का मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया। मेयर कराची मुर्तजा वहाब ने वीडियो जारी कर दी। कहा, सैलाबी रेले से हब केनाल के मुतासर होने वाले 20 मीटर हिस्से की मरम्मत 48 घंटों में मुकम्मल करके पानी की फराहमी बहाल कर दी। मेयर कराची ने कहा कि बदकिस्मती से हमारे हरीफ हमेशा हकायक को समझे बगैर इल्जामात लगा देते हैं। हम काम जारी रखेंगे और हरीफों की दोखली पॉलिसी बेनकाब करेंगे। मेयर कराची का ओल्ड सिटी एरिया का भी दौरा, तरक्याती कामों का जायजा लिया। कराची के इलाके को रंगी मदीना कॉलोनी से शादी के रोज दुल्हा लापता। 3 दिन पहले पेश आए वाक़े में अब तक दूल्हे का पता न चल सका। अहले खाना के मुताबिक जहांजेब शादी के रोज शाम 6 बजे सैलून गया था, फिर उसका पता नहीं चला। गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज। वालिद के मुताबिक जहांजेब सैलून पहुंचा ही नहीं था। मोबाइल फोन भी घर छोड़ गया था। पुलिस के मुताबिक सीसीटीवी कैमरों से मदद ली जा रही है। जहांजेब के मोबाइल का डेटा भी चेक किया जा रहा है। जहांजेब के वालिद को उसके अगवा का शुबा है। रावलपिंडी की कायदे आज़म कॉलोनी में मुबैना तौर पर खातून को जलाकर कत्ल कर दिया गया। मकतूला के बेटे का इल्जाम है कि उसकी चची ने वालिदा को कमरे में बंद करके आग लगाकर कत्ल किया। शवाहिद छुपाने के लिए कंप्रेसर फटने का ड्रामा रचाया। मकतूला के बेटे के मुताबिक उसकी चची अक्सर वालिदा से झगड़ा करती थी। वाक़े का मुकदमा दर्ज। मकतूला का देवर ज़ेर हिरासत। पुलिस की इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक मकतूला को पेट्रोल छिड़क कर आग लगाई गई। मेडिकल रिपोर्ट्स की रोशनी में मजीद तहकीकात जारी। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की चीन के शहर शुजू में मेयर से मुलाकात। हैदराबाद और शुजू को सिस्टर सिटीज करार देने की तजवीज पर गौर। गवर्नर सिंध का कहना था कि पाकिस्तान की पायदार तरक्की के लिए डैमों की तामीर नागुज़ीर है। सिंध में इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी के शोबों में सरमायाकारी के वसी मौके मौजूद हैं। एक अहद हुआ तमाम, सूफी था जिसका नाम। स्पोर्ट्स जर्नलिज्म को नई जहत से रोशनास कराने वाले सीनियर सहाफी और जियो न्यूज के स्पोर्ट्स एडिटर सैयद मोहम्मद सूफी इंतकाल कर गए। 80 साला सैयद मोहम्मद सूफी रोजनामा जंग समेत कई अखबारात और रसाइल से मुंसलिक रहे। मार्शल लॉ के दौर में आजादी सहाफत की जद्दोजहद के दौरान कैदोबंद की सऊबतें भी बर्दाश्त की। सैयद मोहम्मद सूफी की नमाज जनाजा आज बाद नमाज असर कराची में अदा की गई। चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी का कहना है कि सैयद मोहम्मद सूफी के इंतकाल से स्पोर्ट्स जर्नलिज्म के सुनहरी दौर का खात्मा हो गया है। सहाफत के लिए उनकी खिदमत को हमेशा याद रखा जाएगा। साबिक कप्तान वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी और दीगर खिलाड़ियों का भी सैयद मोहम्मद सूफी के इंतकाल पर ताज़ियत का इज़हार। और वेस्ट इंडीज के साबिक जारिह मिजाज बैटर क्रिस गेल एक बार फिर तवज्जो का मरकज बन गए, लेकिन इस बार वजह क्रिकेट नहीं बल्कि ढोल की थाप पर भंगड़ा है। पुर्तगाल में क्रिस गेल ने ढोल की थाप पर डांस किया। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई।